ابھی تک نہیں آئے؟ نہیں تتلی بہن، جگو تو ابھی تک نہیں آئے، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ تتلی بہن، اچھا کیا تم نے جو تم آ گئی، اکیلے تو مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ارے ہاں رانو بہن، مجھے بھی گھر پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ شام کو تمہارے گھر آئی تھی تو تم نے بتایا کہ جگو بھیا گھر پر نہیں ہے۔ ابھی موسم بہت خراب ہو گیا تو میں نے سوچا کہ جا کر پتہ ہی کراؤں جگو بھیا گھر پر بھی ہیں یا نہیں۔ تم نے بہت اچھا کیا تتلی بہن، جگو تو اس وقت تک واپس آ جاتے ہیں۔ آج تو طوفان بھی بہت تیز ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ اچھا رانو بہن، تم پریشان مت ہو، جگو بھیا آ جائیں گے۔ میری کوئی مدد چاہیے ہوئی تو مجھے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گی۔ ارے نہیں تتلی بہن، مت جاؤ نا، مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ جگو جی کے آنے تک تم یہیں رک جاؤ نا۔ اچھا ٹھیک ہے رانو بہن، اگر تم ایسا کہہ رہی ہو تو رک جاتی ہوں۔ اچھا رانو بہن، اپنے انڈوں کا سناؤ، یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں تتلی بہن، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، بس میں انتظار کر رہی ہوں کب ان انڈوں میں سے پیارے پیارے بچے باہر آئیں گے۔ میرے بچے ہو جائیں گے تو اکیلا پن دور ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ حال ہے کہ موسم تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، بچوں کے ساتھ اکیلے پن کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ہاں رانو بہن، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تم پریشان مت ہوا کرو، بس بچے جلدی باہر آ جائیں گے اور تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ تتلی رانو کی پڑوسن تھی اور وہ دونوں مل کر باتیں کر رہی تھی۔ رانو کا پتی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ جگو چڑا گھر آ جاتا ہے۔ ارے جگو جی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ ارے رانو، مجھے سانس تو لے لینے دو، پھر بتاتا ہوں سب کچھ۔ چلو اچھا ہو گیا تتلی بہن تمہارے پاس تھی، میں بھی باہر پریشان ہو رہا تھا کہ تم گھر پر اکیلی ہوگی۔ ہاں شکر ہے تتلی بہن میرے پاس آ گئی تھی، ورنہ اکیلے تو میرا پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ لیکن تم پریشان مت ہوا کرو، مجھے آج کام تھوڑا زیادہ تھا، اسی وجہ سے تھوڑی دیری ہو گئی، پھر بارش اور طوفان بھی تھا راستے میں، اس وجہ سے میں جلدی نہیں آ سکا۔ کبھی کسی پیڑ پر بیٹھتا تھا تو کبھی کسی پیڑ پر، بس اسی لیے دیری ہو گئی۔ اچھا جگو بھیا، رانو بہن، میں اب گھر چلتی ہوں۔ تتلی بہن، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ نہیں جگو بھیا، میں اکیلے چلی جاؤں گی، گھر کون سا دور ہے، آپ کو ہاں تکلیف ہوگی۔ یہ کہہ کر تتلی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ ہاں رانو، انڈوں کا کیا حال ہے، یہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی انڈے تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ کھانا کھا کر جگو اور رانو سو جاتے ہیں۔ جب وہ صبح اٹھے تو بارش رک چکی تھی۔ جگو معمول کے مطابق صبح صبح اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ ایک دن جگو جب شام کو گھر واپس آتا ہے تو وہ رانو سے کہتا ہے، رانو مجھے کسی کام سے جنگل سے باہر جانا پڑے گا 3-4 دن کے لیے، وہ 7 کالی گھاٹی والا جنگل ہے نا، وہاں جانا ہے مجھے۔ کیا؟ کالی گھاٹی والا جنگل تو بہت دور ہے اور اس کے راستے میں تو ایک دریا بھی پڑتا ہے، وہ دریا تو چڑیاں پرندے اڑ کر طے ہی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا ہے۔ رانو کیسی باتیں کرتی ہو، میں اتنی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی والوں نے کشتی کا انتظام کر رکھا ہے، ہم لوگ کشتی میں بیٹھ کر جائیں گے، میرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہوں گے، تم پریشان مت ہو۔ لیکن جگو جی، میں 3-4 دن اکیلے گھر پر کیسے گزاروں گی؟ آپ تو جانتے ہیں رات کو اکیلے میں مجھے نیند نہیں آتی۔ رانو، تتلی بہن کو بلا لینا نا، کچھ دن وہ تمہارے پاس رک جائیں گی اور میرا بھی کام ہو جائے گا۔ اب کام تو کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ کمپنی والے باہر نکال دیں گے مجھے۔ ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں تتلی بہن سے بات کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جگو کام پر چلا جاتا ہے اور رانو تتلی کے پاس چلی جاتی ہے۔ تتلی بہن، آپ سے مجھے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں رانو، بولو کیا بات ہے؟ تتلی بہن، جگو جی کو
किसी काम से जंगल से बाहर जाना है 3-4 दिन के लिए, और आप तो जानती हैं मैं अकेले रात को कैसे रुकूंगी। क्या आप कुछ दिन के लिए मेरे पास रुक जाएंगी? हाँ हाँ रानो बहन, मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगी। मैं भी तो घर पर अकेली ही रहती हूँ। मेरे कौन सा बच्चे हैं जिनको मैंने देखना होता है। तितली बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा मेरे काम आती हो। अरे अरे रानो बहन, इतनी तारीफें मत करो मेरी, मैं मोटी हो जाऊंगी। अगले दिन जग्गू सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा रानो, मैं अब चलता हूँ। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरे अंडों का भी। ठीक है जग्गू जी, आप खैरियत से जाएं। ये कहकर जग्गू सफर के लिए निकल जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। तितली और रानो बड़े प्यार से वो दिन गुजारती हैं। अब वो दिन आ गया था जब जग्गू ने वापस आना था। जग्गू खुशी खुशी अपना काम खत्म करके कश्ती में बैठकर वापसी के लिए निकल जाता है। तितली बहन, आज जग्गू जी वापस आ जाएंगे, देखो मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई है। हाँ रानो बहन, आज जग्गू भैया वापस आ जाएंगे और मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। तितली बहन, आप हमारे घर पर ही रह जाए ना, अपने घर पर आप अकेली रहकर क्या करेंगी? नहीं नहीं रानो बहन, तुम्हारे साथ मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरे, मगर अपना घर तो अपना ही होता है, अपने घर के बगैर कौन रह सकता है भला। हाँ तितली बहन, ये बात तो आपने ठीक कही। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक तेज तूफान आ जाता है और साथ ही गर्ज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। तितली बहन, मौसम तो बहुत खराब हो गया है, अल्लाह करे कि जग्गू जी वहाँ से ना निकले हो, वरना तो रास्ते में उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ रानो बहन, ये तो तुम ठीक कह रही हो, तूफान तो बहुत खतरनाक है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तुम परेशान मत हो, जग्गू भैया को भी पता है इतनी तेज तूफान में वो नहीं निकले होंगे। मगर जग्गू तो कश्ती में बैठकर वापसी के लिए निकल चुका था। उनकी कश्ती आधे रास्ते में पहुंच चुकी थी, लेकिन तूफान और बारिश इतनी तेज थी कि उनके लिए कश्ती को आगे लेकर जाना मुश्किल हो रहा था। कश्ती में बैठे हुए सभी पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे। अचानक से एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और वो कश्ती उलट गई। तितली बहन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं जग्गू जी किसी मुश्किल में ही ना फंस गए हो। अरे रानो बहन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जग्गू भैया बिल्कुल ठीक होंगे, तुम हाँ मौसम की वजह से परेशान हो रही हो। तुम फिक्र मत करो, जग्गू भैया आ जाएंगे। उस रात बहुत तेज बारिश होती रही। रानो सारी रात जागकर जग्गू का इंतजार करती रही, मगर जग्गू लौटकर नहीं आया। सुबह भी तेज बारिश होती रही और शाम तक बारिश लगातार थी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तितली बहन, अब तो पूरा दिन गुजर गया है, जग्गू जी आज भी नहीं आए। रानो बहन, जग्गू भैया कहीं न कहीं रुक गए होंगे, उन्हें भी पता है कि बारिश बहुत तेज है, इसीलिए वो शायद वापसी के लिए निकले ही नहीं होंगे। तितली रानो को बहुत तसल्लियाँ देती है, मगर रानो के दिल को सुकून नहीं आ रहा था। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। रानो बहन, तुम देखना, आज जग्गू भैया जरूर आ जाएंगे। अब बारिश रुक गई है ना, खतरा टल चुका होगा, आज वो जरूर आ जाएंगे। रानो को भी उम्मीद थी कि आज जग्गू जरूर आ जाएगा, मगर ये दिन भी ऐसे ही गुजर गया और जग्गू लौटकर नहीं आया। अब तो रानो वाकई बहुत परेशान हो गई थी। रानो परेशान होकर रोना शुरू कर देती है। तितली बहन, यकीनन कुछ न कुछ अच्छा नहीं हुआ जग्गू जी के साथ। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन जग्गू जी आज भी नहीं आए। पता नहीं क्या हुआ जग्गू जी के साथ, जग्गू जी अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। तितली बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? रानो बहन, पहले तो मैं तुम्हें तसल्लियाँ दे रही थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तितली बहन, तुम मेरे साथ चलोगी? हम लोग काली घाटी वाले जंगल जाएंगे और जाकर जग्गू जी का पता करेंगे। ठीक है रानो बहन, अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तितली और रानो काली घाटी वाले जंगल की तरफ निकल जाती हैं। अभी वो कुछ ही आगे गई थी कि अचानक से बारिश फिर से शुरू हो जाती है। इस बार भी बारिश बहुत तेज हो रही थी।
तितली वहीं एक दरख्त पर रानो को लेकर बैठ जाती है। रानो बहन, एक बात कहूँ, गुस्सा मत करना, लेकिन मेरे ख्याल से हमें काली घाटी वाले जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास तो कोई कश्ती भी नहीं है और वहाँ तो दरिया पार करके जाना पड़ता है। मेरी बात मानो तो घर लौट चलते हैं। ऊपर से तुम्हारे अंडे भी घर पर अकेले हैं। अगर हमारे पीछे से इसमें से बच्चे निकल आए तो तुम क्या करोगी? तितली बहन, मैं क्या करूं? जग्गू जी की फिक्र मुझे खाए जा रही है, मगर तुम्हारी बात भी ठीक है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आगे जाऊं या पीछे? रानो बहन, अभी तो आगे जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। चलो घर वापस लौट चलते हैं। यही सोचकर वो दोनों घर वापस चली जाती हैं। जैसे ही वो घर पहुंची, रानो के अंडों से बच्चे निकल चुके थे। अरे मेरे बच्चे! तितली बहन, तुमने ठीक कहा था। अगर हम लोग वापस नहीं आते तो इन बच्चों का क्या होता? खुदा का शुक्र है, कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। बच्चों को देखकर रानो थोड़ी देर के लिए जग्गू का गम भूल जाती है। वहाँ जग्गू अभी जिंदा था, मगर वो बेहोश हो चुका था और वो वहीं समंदर के किनारे पड़ा था। वहाँ से एक तोता गुजर रहा था। अरे ये चिड़ा यहाँ कैसे पहुँच गया? पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं। जब तोते ने थोड़ा पास होकर देखा तो जग्गू अभी सांस ले रहा था। अरे ये तो जिंदा है अभी, मेरे ख्याल से मैं इसको घर ले जाता हूँ। तोता जग्गू को उठाकर अपने घर ले जाता है। तोता डॉक्टर को बुलाता है और उसका इलाज करवाता है। मैंने इनको चेक कर लिया है, इनकी तबीयत कुछ देर में बेहतर हो जाएगी। अभी मैंने इनको नींद का इंजेक्शन लगाया है, शायद ये कल तक ही होश में आएंगे। डॉक्टर ये कहकर चला जाता है। जब सुबह हुई तो जग्गू होश में आ गया। अरे चिड़े भैया, आप कैसे हैं? आप मुझे बेहोश मिले पानी के पास और मैं उठाकर आपको अपने घर ले आया। अरे बहुत शुक्रिया आपका तोते भैया, लेकिन मुझे अब अपने घर जाना है। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं कितने दिन से घर नहीं लौटा। वो सब तो ठीक है जग्गू भैया, लेकिन मेरे ख्याल से आप कुछ दिन आराम कर लें तो बेहतर होगा। नहीं नहीं तोते भैया, बहुत आराम कर लिया मैंने, मुझे आज ही अपने घर जाना है। अच्छा चले, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं आपको छोड़ाता हूँ आपके घर, क्योंकि आप उड़ नहीं पाएंगे अभी ज्यादा। मेरे पास एक उड़न खटोला है, उसी में मैं आपको बिठा कर ले जाऊंगा। तोता जग्गू को अपने उड़न खटोले में बिठा कर ले जाता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद जग्गू अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही जग्गू अपने घर पहुंचा, रानो और तितली उसको देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे जग्गू जी, आप कहाँ रह गए थे? मैं कितना परेशान हो गई थी। खुदा का शुक्र है कि आप महफूज हैं। इतने में जग्गू की नजर अपने बच्चों पर पड़ जाती है। अरे हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ गए, कितने प्यारे बच्चे हैं ये तो। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, रानो ये तोते भैया ने ही मेरी मदद की। ये मेरी मदद ना करते तो शायद मैं मर ही जाता। आपका बहुत शुक्रिया तोते भैया, आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अरे नहीं रानो बहन, एहसान वाली क्या बात है। मैंने जग्गू भैया को मुसीबत में देखा तो मैंने उनकी मदद कर दी। वो सब तोते का शुक्रिया अदा करते हैं और तोता जग्गू को छोड़कर अपने घर वापस चला जाता है। जग्गू और रानो बहुत खुश थे।